equation of motion, three equation of motions are there. So three equations of motions are there, means v is equal to u plus at, a square ut plus half at square, and b square is equal to u square plus 2s. Already you know from the class 9th. Here, because in previous class I had taught integration, so that how to prove equation of motion by calculus method. So in this video we will do this. तो क्या बताए, टॉपिक का नाम होगा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड. Already you have the concept about this three equations of motion. तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, पहला जो है देखो, दो फॉर्मूला यू हैव टू लर्न. डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज इक्वल्ड वेलोसिटी. मतलब पोजीशन को टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट कर दो तो दैट विल बी द वेलोसिटी, एंड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी with the time that is called acceleration. So these two formula you have to learn it. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रूव करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at. v is equal to u plus 80. देखो, you have to keep in the mind what you have to bring here, v, velocity. So velocity you have to bring means you will take this one, because here we will use that integration. So sir, you will write, we know a is equal to dv by dt. अब क्या करते हैं इसको कि now put the cross multiplication. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू a dt. dv इज इक्वल टू a dt. अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. आप तो दो तरह का इंटीग्रेशन पढ़ाए थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, विद लिमिट, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट. तो हियर पुट द साइन ऑफ द इंटीग्रेशन dv a dt इंटीग्रेशन. आपको पता है इंटीग्रेशन का कांसेप्ट ऑलरेडी आई हैड टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो. यहां चेंज क्या चीज में आ रहा है, टाइम में, और यहां पर चेंज आ रहा है वेलोसिटी में. तो we have to take the limit with respect to velocity. तो suppose that यहाँ से कोई बॉडी चलती है, suppose that a body start from A and reaches at point B. तो यहाँ पर velocity क्या हो जाएगा, v1 is equal to u, और here v2 is equal to v. Means you have to take the limit initial velocity to final velocity, because you know that limit in terms that is called lower limit, upper limit. यहाँ पर टाइम में चेंज आ रहा है, तो here इसका मतलब है from where the body start time is 0, और here t2 is equal to t will be there. Means when the body reaches at other point it will take some time. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में वही हम लिमिट ले लेते हैं, कितना, v1 u से लेकर के v तक, यहां पर ले लेते हैं कितना, 0 से लेकर d तक. तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v लोअर लिमिट u अपर लिमिट v. here see there a is the constant term, and you know that constant term comes outside from the integration. तो a को हमने बाहर ले लिया, dt इंटीग्रेशन t 0 से लेकर के t तक. ओके, अब now we'll put the limit. तो v minus u upper limit minus lower limit is equal to a t minus 0, that is v minus u is equal to a t. This is the first equation of motion. कितना इजी है, only
यू हैव टू स्टार्ट, एक तरह से कहा जाए कि स्मूथली योर फिंगर ओनली इफ यू हैव द कंसेप्ट, तो पेन तो आगे आगे ऐसे ही भागेगा। तो everyone had to think only what is the starting theme will be there. Now second equation of motion, ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s is equal to ut plus half at square। और here you should know s क्या होता है, what represents s, what represents u, what represents a, what represents t। तो s distance covered, u initial velocity, that means here you have to take the formula in terms of position। तो इसमें कौन सा क्लियर है, इसमें पोजीशन इसमें आ रहा है, तो वी विल टेक v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v नो v इज इक्वल टू dxy dt। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा, व्हाट विल गेट, dx इज इक्वल टू v dt, v x इज इक्वल टू dx इक्वल टू v dt। नाउ put the value of first equation of motion, putting v is equal to u plus at, so what will be, dx is equal to u plus at into dt, dx equal to u plus at into dt। अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह से क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप बताओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स का मतलब क्या हुआ, पुट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पर हमने इंटीग्रेशन का साइन रख दिया dx, इंटीग्रेशन u प्लस at इंटू dt। अब क्या करो, इंटीग्रेशन को ओपन करो, तो क्या हो जाएगा यहां से, dx u dt प्लस a t dt। आपको पता होगा, here the change takes place in the position, here change takes place in time, here change takes place also in time, it means other quantity is called constant। तो क्या करते हैं, उसको dx को dx रहने दिया हमने, u को बाहर ले लिया, dt प्लस a बाहर ले लिया, t dt। नाउ यू हैव टू टेक द लिमिट, तो लिमिट आपको पता है, जैसा बताए थे कि सपोज दैट वी टेक द टू पोजीशन, अगर यहां से बॉडी चलना स्टार्ट किया, बिकॉज इनिशियली द बॉडी वाज एट रेस्ट, तो क्या डिस्टेंस हो जाएगा, 0। यहां पर p पर पहुंचना कुछ न कुछ तो डिस्टेंस कवर्ड किया होगा, दैट इज डिनोटेड विद s। नाउ टाइम t1 जहां से चला, दैट वाज द बॉडी वाज रेस्ट एट द t इक्वल टू 0, t1 और t2 इट विल टेक द टाइम। इसका मतलब है यू हैव टू टेक द लिमिट 0 से लेकर s तक और 0 से लेकर t तक। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर 0 से लेकर के s, 0 से लेकर के t, 0 से लेकर के t। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s, u dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t, 0 से लेकर के t, प्लस a t स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर के t। ओके, नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर, s माइनस 0, u t माइनस 0 प्लस a बाय 2 t स्क्वायर माइनस 0। तो क्या हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम t। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ विल सी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या देखेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ
मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, हम लोग किसको प्रूव कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन में एवरीथिंग इज कंटेंट है, v भी है, u also is there, a is also there, s is also there। इसलिए यहाँ पर कुछ आपको फॉर्मूला को कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन करने के लिए क्या, जैसे हमने बताया था कि दो में से कोई एक को यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए ये ले लिया था v dv by dt। सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए v इक्वल टू dx by dt। थर्ड को क्या ले भाई, थर्ड के लिए आपको जो पसंद है वो ले लो। तो थर्ड में क्या करेंगे, वी नो a इक्वल टू जैसे है dv by dt। whenever you have taken a इक्वल टू dv by dt, तो क्या करो इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो dx से। सपोज दैट you are thinking कि why will not take this formula, you can take this also। तो v is equal to dx by dt, तो you have to multiply by dv, you have to multiply and divide by dv। तो हमने लेकर के चला है ये। अब क्या कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सचेंज कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, इसको यहाँ रिप्लेस कर दिए। तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब देखो तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा v वेलोसिटी। तो a इक्वल टू हो गया dv बाय dx इनटू वेलोसिटी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a dx इज इक्वल टू v dv। अब क्या करोगे, फिर से वही नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड का मतलब क्या होता है कि पुट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर हमें a dx, तो यहां पर जो हो जाएगा इंटीग्रेशन v d। व्हाट आई टोल्ड, हाउ विल टेक द लिमिट, यहां से बॉडी चलना शुरू हुआ, यहां पर पहुंचा, पोजीशन में चेंज आ रहा है 0, तो यहां पर हो जाएगा कुछ न कुछ तो पोजीशन में गया ही गया, क्योंकि यहां पर पोजीशन में चेंज आ रहा है, यहां वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तब v1 के जगह u ले लो और v2 के जगह पर v ले लो। तो जब हम लिमिट देते हैं तो 0 से s, 0 और u से लेकर v। a बाहर कांस्टेंट टर्म है, तो dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेकर के s तक आगे हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 अपॉन ub। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है ना, x टू द पावर n dx का हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1। तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई हियर। तो क्या हो जाएगा, सीधे a put the limit s minus 0 is equal to 1 by 2 v square minus u square। Why that? First of all give the upper limit, then you will put lower limit। So this is the third equation of motion, v square u square is equal to 2a। This is the third equation of motion। एक नया इक्वेशन का कंसेप्ट यहां पर देता हूं, उस कंसेप्ट से है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करते हैं, जिसको कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब क्या होता है, nth जैसे हमने कहा डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड, तो क्या बता रहे थे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय nth सेकेंड। nth का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। मतलब अगर डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड लिए यहां तक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड यहां तक है, तो ये वाला डिस्टेंस में ये माइनस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd
सेकेंड। तो उसी को हम लिखते हैं कैसे कि Sn को लिख देते हैं डिस्टेंस इन n सेकेंड, डिस्टेंस इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस इन n माइनस 1 सेकेंड। तो क्या हो जाए फॉर्मूला, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर। तब Sn जो आ जाएगा un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u ब्रैकेट ओपन कर दो प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा un से un कैंसिल हो जाएगा। इसको आप स्प्लिट करोगे, फॉर्मूला लगाओगे n माइनस 1 का स्क्वायर, तो हाफ a n स्क्वायर प्लस u प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये बताओ, ये आ गया। तो साइन हो जाएगा यहाँ पर, क्या चीज ओपन कर देते हैं, माइनस में आ जाएगा, माइनस प्लस हो गया तो हाफ a n स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस हाफ a माइनस हाफ a कितना 2n। तो यहां पर सब फिर हो जाएगा हाफ a n स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा हाफ a n स्क्वायर होगा ना, और ये हो जाएगा हाफ a, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा Sn इज इक्वल टू u प्लस, क्योंकि यहां से कैंसिल हो गया, तो u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ये जो आ जाएगा आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। इसलिए हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ फोर मोशन, लेकिन फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर जो हो गया नया है। 3 तक तो आपको पता है, ये फोर्थ है। इसलिए 1 बाय 1 सभी वीडियो को देखो, इस पर भी क्वेश्चन आता है, एंड डू द प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, डू प्रैक्टिस।